सो या एक और वीडियो हमने प्लान किया था कि एग्ज़ाम के बाद रिकॉर्ड करेंगे, बट नीड लगी हमें कि चलो एक और प्री एग्ज़ाम वीडियो बना देते हैं टू जस्ट रिफाइन आवर सेल्फ दैट वेयर वी आर हेडिंग। दाढ़ी थोड़ी सी बढ़ गई है ज़्यादा यार। ये तो दाढ़ी जब बढ़ जाती है तो थोड़ा सा बल्कि चेहरा लगता है, जब काट देता हूँ तो बड़ा शार्प हो जाता है, तो ये बड़ा डायलमा चल रहा है अभी इसको लेके, बट स्टिल ठीक है, एग्ज़ाम के बाद कटवाएंगे बाल भी और दाढ़ी भी। एंड या द थिंग आई मेंशन दैट फॉर द प्री एग्जाम रिफाइनमेंट, उससे मेरा मतलब ये है कि देखिए बस 2 दिन, अब 2 साल 2.5 साल 3 साल से व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, नाउ जस्ट 2 days अवे फॉर एग्जाम, ऐसा कुछ मेरे को भारी ऐसा भरकम लग नहीं रहा है, बिकॉज आई हैव दैट काइंड ऑफ पीस विद एग्जाम, तो मैंने कनेक्ट टाइम बाद बना लिया है। हाँ, एंजाइटी होती है, टेंशन होती है, अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ यार, मतलब इतना एफर्ट लगाया। फिर वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन एंड आउट हु प्रिपेयर मोर रिगरसली देन मी, they still face, there are people who already cleared exam last year, they still face the same issue. So अगर उस टाइप के लोग स्ट्रगल कर रहे हैं तो why I am going to take lot of anxiety, मतलब I still have to be back myself with my learning, with my knowledge, with my practices which I have in the last 5 months हम जो prep कर रहे हैं starting from January to this May, उस पर बिलीव रखना होगा, that only thing I can carry forward because I have that belief to stay positive, stay calm, stay stress free, because these exams itself give a lot of stress to you, everyone, and and also to the examiners itself, the organizers, the examiners who are taking exam, उनको भी stress अलग दिला को देता है, because उन पे थोड़ा सा था ना कि चीज़ें गलत ना हो, खराब ना हो, तो जब वो ऑलरेडी इस चीज़ में, तो यू आर जस्ट एन एस्पिरेंट, a fellow aspirant who is preparing uh, rigorously for the exam and putting whatever you can, because the main thing I am calm with myself कि whatever I have, whatever I can do, I done from my side। उस चीज़ का एक रिलीफ है कि दिस इज द बार मैक्स, 5-10% ऊपर नीचे हर जगह स्कोप होता है कि और बेटर कर सकता था और ऐसा कर सकता था, बट have that acceptance कि I put myself in whatever manner I can, and whatever will the result, I will accept it with my dearest heart, because it is the max I can put on for this exam, with parallel the full time full time opportunity, full time working software engineer position I have। So उस चीज के हिसाब से I am very at good peace within me। Journey, if I'm going to talk about my journey in this exam and in this preparation, because I really kind of person who believe in the preparation journey, the process part, I really believe, because that's the part which keeps the curiosity, that nerve. When you clear something, when you get to that position which for which you are preparing, it's like ठीक है, एक दिन 2 दिन एक हफ्ता max, but what after that, 8th day you have still have to focus on the mission, like for the exam you are preparing, and that you know the services that you have to serve for exam, serve for the services for which you are preparing, after 8-9 days like fading away, but this process, this journey itself is very, हर वीक इंटेंसिटी बढ़ रही है, हर वीक यू गेट टू नो कि यार मेरे को ये नहीं आता, मेरे को ये नहीं आता, मार्क्स कम आए, इट कीप ऑन यू ऑन दैट हैंग, और स्टिल अगले साल भी और रखेगा ये, ऐसा भी नहीं है कि इट्स अ नेवर एंडिंग, इट्स अ एंडिंग प्रोसेस वाला पार्ट बता रहा हूँ। तो इसको मैं रियली इंजॉय करता हूँ, बिकॉज इट मेक्स यू रियलाइज दैट वॉट यू कैन हैव टू पुश and what you have to grab in order to get ahead of those people who are still on the same boat with you, better than you, worse than you, or wherever their possible position they can। so उस चीज की एक एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम मांगता है, एंड विद दैट आई रियली फेल्ट कि हाँ, somewhere I sacrificed a lot of things from my heart also, and yeah, so malal nahi hai, because the bigger takes, the bigger sacrifices वाली बात हो जाती है कि आप एक बड़े किसी मिशन के लिए किसी बड़ी चीज को सेक्रीफाइस कर सकते हो कि नहीं, दैट गिव्स यू द सेंस ऑफ योर डिवोशन फॉर दिस एग्जाम, फॉर एनी फेज, एंड या वो चीज़ है। और इवॉल्व तो मैं ऐसे हुए ना, इंसान, हम इंसान एज ह्यूमन बीइंग इवॉल्व ऐसे हुए हैं कि हमें डिस्ट्रैक्शंस के लिए हम काफ़ी वनरेबल हैं, डिस्ट्रैक्शंस के लिए हम काफ़ी ट्रेंड है, हमारा दिमाग काफ़ी ट्रेंड है, डिस्ट्रैक्शन हम हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हम हो जाएंगे, जो कि हुआ भी, दैट्स नॉट इफ एन एल्स फॉर इट, ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल नेचर, बट व्हाट यू कैन फॉरगिव एंड व्हाट यू फॉरगॉट बिहाइंड योर लेन, कि ठीक है पीछे मैं देखूंगा अपनी इस पूरी जर्नी को, इस पूरी प्रिपरेशन को, तो क्या मेरे दिमाग में रहेगा कि exhaust minds, half prep tests, notes, summaries,
करंट अफेयर्स, PTC 65 लेक्चर्स, और few of the hiccups I got in this journey the last 5-6 months itself. उससे पहले तो हम बात ही नहीं करते हैं 5 महीने में इतने हिकअप्स हैं। तो ये जर्नी ऐसी ऐसी बनी हुई है, मतलब मुझे बाकी एग्जाम्स का नहीं पता, SSC, CGL, लॉ, MBA, कैट, मुझे उनका नहीं पता, उनकी भी अपनी एक अलग पेरिफेरल होगा, अपनी अलग सफरिंग होगी, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। व्हाट आई फेल्ट इन दिस जर्नी, और जितने भी एग्जाम्स मैंने पहले दिए, लाइक कॉलेज एग्जाम, स्कूल एग्जाम, जेई मेन, NDA, सभी एग्जाम्स में से इस एग्जाम में मैंने डिवोटली अपने आप को डाला। मेंस में भी डाला था, 6 महीने का रिग्रेसली डाल दिया था। देन आई गॉट द रिजल्ट्स व्हिच मैटर्स टू मी, जो मुझे मेरी मेहनत से मिला वो मिला। लैंडेड इन द JSS। तो मैं सोचता हूँ कि सारे ऐसे डॉट्स होंगे जो कनेक्टेड होंगे मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, तो वो मुझे और पीस देती है। और मुझे मतलब जब भी स्ट्रेस होता हूँ, जब भी मुझे लगता है, डाउट करता हूँ अपने आप में, क्या अब क्या मैं, मतलब वेयर आई एम हेडिंग, तो ये चीज़ें जो होती हैं कि कितनी चीज़ें एक साथ आई होंगी, मेरे कितने सारे डिसीजंस, मेरे कितने सारे एक्शंस ऐसे होंगे जिससे मुझे यहाँ लैंड अप किया। जैसे मुझे एक इवेंट याद आता है कि मेरे को डेंगू हो गया था इन द सेकंड ईयर, नॉट सेकंड ईयर, इन द सेकंड सेमेस्टर। सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर एंड होने वाला था, सेकंड सेमेस्टर में मुझे डेंगू हो गया था। तो उसकी वजह से मुझे, आई एम रिमेंबर द डेट, सितंबर में हुआ था मुझे, तो मुझे पूरे अक्टूबर, लाइक मुझे रहना, नवंबर से मैं फिर गया मैं कॉलेज, तो 1.5 मंथ्स में लाइक ऐसे एकदम सेल्यूटेड। वेट लूज हुआ मेरा काफ़ी ज़्यादा। एक हफ्ता 8 दिन में जो था ICU उसमें रहा था, बेड पे, ICU पे। तो वो स्ट्रेस, फाइनेंशियली आप बर्डन बन जाते हो, तो होता है कि यार मेरी वजह से पापा को देख रहे हो, मम्मी को देख रहे हो, वो स्ट्रेस हैं। और आप मतलब, वो भी एक्सपीरियंस काफ़ी यार बहुत अजीब था। वन ऑफ दी वन, मतलब एक ही बार मिले, ऐसा नहीं कि बार बार मिले, वन ऑफ दी एक ही बार एक्सपीरियंस मिले। तो एक्सपीरियंस भी लर्निंग थी कि यार कैसा लगता है जब आप 7 दिन तक आप हो, अपने आपकी वजह से लोग को बुरा लग रहा है, आप और आप देख रहे हो कि प्लेटलेट्स डाउन हो रही है, प्लेटलेट्स डाउन हो रही है, आपका बॉडी वेट डाउन हो रहा है, वो खाने में मन नहीं लग रहा, बट ठीक है, वो एक था। उसके बाद जो आप मोटिवेट होकर वापस आए, इसके बाद 120 दिन लगातार लीड कोड किया, बीस में घुस गया कि नहीं यार अब नहीं छोड़ना। एंड्रॉइड डेवलपमेंट की एप्लीकेशन बनाया, पहला मैं न्यूज़ ऐप बनाया। तो बहुत कुछ ऐसा था कि यू हैव टू, कि हाँ मुझे और अपने को स्पीड अप करना पड़ेगा, स्पीड अप किया। तो चीज़ें बनती गई, चीज़ें आगे चलती गई। आई एम नॉट सेइंग दैट दीज आर द बेस्ट थिंग आई कैन डन, और इससे अच्छा कुछ और हो नहीं सकता था मेरे लिए, नहीं। वट एवर आई डन इज बेस्ट फॉर मी। वट एवर आई डन, वट एवर आई डिसाइड टू डू एट दैट पॉइंट मोमेंट ऑफ टाइम, आगे भी जो करूंगा इज समथिंग विच मेक्स मी हैप्पी, विच मेक्स मी, ठीक है, टू कीप माई सेल्फ मूविंग, बिकॉज आई एम दी काइंड ऑफ फिलोसफर जो कीप मूविंग वाले काम पे काफ़ी बिलीव करता है। ये नहीं कि बस बैठे रहो, सोचते रहो और थॉट में अपने स्पाइरल करते हैं, नहीं, आगे मूव करते हैं। रास्ता अच्छा होगा, वेल एंड गुड, नहीं होगा तो अच्छा बना लेंगे, या कुछ अच्छे में डाइवर्ट हो जाएंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन यू गेट इनटू योर हेड, और सोचने वाली चीज होती है। मैं सबसे ही कम्युनिकेट करता हूँ, मुझे जो भी मेरे साथी होते हैं, जब मूव तो का एक्शन तो लें, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इट्स यू हु हैव टू बियर, नो वन, मतलब आपके पेरेंट्स भी नहीं आएंगे, आपके साथ वाले भी लोग भी नहीं आएंगे, जो आपको पुश कर रहे हैं वो भी नहीं आएंगे, या जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं वो भी नहीं आएंगे, जस्ट इट्स यू वर्सेस यू। अच्छा फल होगा तो आप खाओगे, बुरा फल होगा तो वो भी आप खाओगे। तो मेक योर सेल्फ इन अ वे कि हर चीज बिलोंग्स टू मी, रिजल्ट्स बिलोंग्स टू मी, माई एक्शंस बिलोंग्स टू मी, आई एम आउंस टू मी माई सेल्फ, रेदर देन पहले हम किसी और पे जाके आऊँ कि मैं इसके लिए भी जिम्मेदार हूँ, इसके लिए जिम्मेदार हूँ। दिमाग थॉट्स आते हैं, लाजमी है, मेरे भी इस लाइन की मेरे बिलीवर होने के बाद भी थॉट्स आते हैं कि यार वो क्या, वो कैसे कहेगा, वो कैसे कहेगा, वेरी नॉर्मल। बट बट वो टेक ऑन आपको करना होता है, आपको अपने ट्रैक पे वापस, तो उस ट्रैक पे वापस आने के लिए आपको ऐसी ऐसी लाइन चाहिए होती हैं। इट्स नॉट लाइक प्रिंसिपल, इट्स लाइक अ वेरी यूनिवर्सल लाइन, ये बहुत एकदम बेस्ट लाइन है ये, नहीं। वट एवर यू डू फॉर योर सेल्फ, वट एवर आई डू फॉर माई सेल्फ, ऐसे रिपीटिंग आपको लाने पड़ेंगे। दैट्स वाई ये वीडियो रिफाइन करने का मुझे बताया, रिफाइनमेंट। तो ये कारण और भी है इसको बनाने का, कि जब भी बाद में कभी देखूं इस वीडियो को, तो आई हैव दैट बिलीव कि ठीक है, किसी पॉइंट ऑफ मोमेंट ऑफ टाइम में मैं हूँगा। जैसे मैं अभी अभी 3-4 दिन पहले अपनी पुरानी वीडियोस देख रहा था चैनल पे, तो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, थोड़ा एनालिसिस कर रहा था कि किस स्टेट ऑफ माइंड में था। एक्चुअली आई नो किस स्टेट ऑफ माइंड में था, मुझे पता है ना, वो लगता है कि कल की बात है, कल ही रिकॉर्ड किया है मैंने वो, अपने होली वाले रूम में बैठ के 31 में बैठ के रिकॉर्ड किया है, कल की बात लगती है, बट इट इज लॉन्ग फकिंग 4 years, एंड नाउ आई एम हियर इन केशव होम्स PG। आज 4 साल बाद किसी और रूम में हूँ, तो कहूँगा कि हाँ केशव PG, यहाँ PG में था, 102 रूम नंबर में था। तो it's a part of moving. If you can't predict yourself in the next 5-6 years, if you can't decide what you can do the next day, the next hour, तो
moment of time, the moment of life is something you have to move out with the things which makes you troubled, which makes you worried about yourself in your skin, and just accept whatever you can. Just accept whether you are heading in positive or negative way. Keeps your heads up, keeps your confidence up, and put a positive smile on your face. That yeah, this is a thing for which I might be born and brought up, and now I have to serve it. So yeah, that's my delivery to myself. That's my delivery जो भी लोग देखेंगे वीडियो somehow पहुंचती है आप तक. तो इस मोमेंट ऑफ टाइम तक आप रहते हो तो ब्लेस कीजिए कि आप ग्रेटफुल हो, आप जिस भी मोमेंट ऑफ टाइम में हो ग्रेटफुल मानिए अपने आप को, और किसी को बुरा मत कीजिए. मतलब यार, मतलब ऐसे एक्शन, ऐसे वर्ड्स मत रखिए कि लोगों को बुरा लगे, बिकॉज इट इज पावर इन अवर वर्ड्स टू हील और ब्रेक समवन. सो व्हाई टू चूज द नेगेटिव पार्ट, ब्रेकअप वाला पार्ट. हील ना यार, हील करो, एटलीस्ट न्यूट्रल रहो. द वर्स्ट यू कैन डू, न्यूट्रल रहो. क्यों किसी को ऐसे कि इसको बोल के मैं बुरा लगवाऊंगा ना. कीप योर इंटेंट पॉजिटिव, कीप योर इंटेंट पॉजिटिव फॉर योर सेल्फ, फॉर योर सराउंडिंग वंस. चीज़ें आएंगी, अगर आपके इंटेंट पॉजिटिव है आपकी तरफ आएंगी, आपको रिजल्ट उसका पॉजिटिव दिखेगा. अगर उसकी नीयत ही वैसी है कि नहीं मुझे खराब करना है, लोगों का खराब करना है, मेरे लिए अच्छा होगा, इट माइट एंड अप कि ठीक है आपका अच्छा हुआ 2 बार 4 बार 5 बार, छठी सातवीं बार जो मैंने भी देखा अपने आसपास, जो मेरी खुद के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कि बुरा आता है, वो घूम के वापस घूम के कहीं ना कहीं आता है, फिर देन यू आर दी पर्सन जो टेंशन लेगा, वरी होगा यार, और खराब स्टेट में जाएगा. तो क्यों स्टेट में जाना. एटलीस्ट न्यूट्रल रहो. वोट आई बिलीव न्यूट्रल रहते हैं, ना अच्छा ना खराब. जो हो रहा है होगा, अच्छा आएगा तो आई विल एक्सेप्ट इट, बुरा होगा तो आई विल एक्सेप्ट इट विद न्यूट्रल हार्ट, नॉट मच एक्सपेक्टेशंस. तो यार इसी के साथ हम ऐड करते हैं वीडियो को. पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है करंट अफेयर्स का. 2 days आउट, 2 days आउट, उसके बाद 1 घंटे की लंबी वीडियो बनने वाली है. आई एम properly ready to bombard with my own experiences, my new stories, my new perspective for 1 hour long at least. So yeah,